So, sir, NABARD exam is approaching near. So, should we cover reports or not? The second question is, if we have to cover the reports, which report should I cover? Third thing is, sir, what are the important reports which I cannot miss at this point of time? And if I have to cover the reports, what are the important sources from where I can tackle those reports? These are the common questions which all of the NABARD aspirants are asking me on regular intervals during my discussion calls, during the emails, or during my live classes also. Now, guys, on these questions that you have asked us, I have framed some sort of basic queries that you guys are actually asking me. I have framed them in some questions here. The common question to cover it or not, I think that can be addressed from the thing that what is the weightage of reports in the NABARD grade examination. Then comes the next question that what type of reports you can expect a question in the NABARD examination, how to cover these reports, what are the best sources for covering these reports, and then is the 25 most important reports which you cannot miss if you're targeting this year's examination of NABARD grade A. So let's start with the first thing, and I think first thing that is important here is whether you have the PYQs or not. So if as of now you do not have the PYQs with you guys, you have not analyzed the PYQs, I would say you are committing a very big mistake here. So please download this guidebook that we're offering you here, guys, which is absolutely free of cost. Here, first of all, you will get access to the previous year questions. You will be getting a decoded syllabus. Okay, Ji? With respect to the non-merit section as well as with respect to the general affairs part of the merit section here. Then you will be able to get some list of important sources and what can be strategy that you can follow. An initial guidance or initial pillar of your preparation can be started from this specific guidebook. It's absolutely free of cost, guys. You can download the same from the link given in the description below. Now let's proceed with my first question that you guys are asking me. Weightage of reports here. Let's try to understand. If you look at behind me, guys, here I have analyzed the reports, number of questions from reports from the past 3 years, that is 2022, 23 and 24 examination. 22, it was somehow that where we have seen that, okay, reports questions are dominating. So we have 15 questions being asked here. Then 23, weightage drastically reduced to 3 questions. 24, we have 6 questions that have been asked. Coming to 2020 phase 2 paper here, 9 marks. No one, nothing, even a single question of 2023 and 4 marks in 2022, which somehow suggests here that report is not a dominating pillar as it is a pillar in the RB examination. But then also I would not advise you guys to leave the report because, guys, if you are sitting in the examination, each and every mark plays an important role here. So I would say you can take a report on moderate priority. So I would not advise anybody that you should leave a report. I would say you should take the reports on moderate priority. Okay, ji, in context of your preparation. Okay, because obviously schemes are dominating, but reports should also not be given a miss here. That's what I would advise you here. But like obviously, if you are a student who is of that dilemma, is just started the preparation and who is seeing that, okay, sir, can I leave now because I do not have enough time? I've just started the preparation. Report is something full of data. So shall I read it or not? So there I would say, guys, that please stay till the end of this video. I will be telling you about the 25 plus most important reports. So that reports you can prepare. That is, I would say, minimum to minimum आप इतना करके चले जा सकते हैं. ठीक है जी. अब आते हैं यहाँ से कि कौन सी रिपोर्ट्स करनी है, क्योंकि नंबर तो देख लिए. अब ये 6 मार्क्स लेने के लिए, ये 3 मार्क्स लेने के लिए या फिर ये 15 मार्क्स लेने के लिए पढ़नी कौन सी रिपोर्ट्स हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैंने आपकी रिपोर्ट्स को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जी. नंबर 1 इज द एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स. ठीक है जी. नंबर 2 इज योर ESI रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स रिलीज बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनिसेफ, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक. अगर वो कोई रिपोर्ट्स निकाल रहे हैं तो वो यहां पे आ जाती है. तीसरे नंबर पे आ जाती है जी आपकी मिसलेनियस रिपोर्ट्स. अब ये मिसलेनियस रिपोर्ट्स क्या है. ये वो रिपोर्ट्स है जो कुछ सर्टेन विजन के साथ गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, या फिर अगर हम बात की जाए दे आर नॉट सब्जेक्टिव टू चेंज द रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है जी. एक्सेप्शन यहाँ पे एक है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि इस साल अपडेट हुआ है कि मंथली भी अपडेट होगा, क्वार्टरली भी अपडेट होगा, एनुअल रिपोर्ट भी आएगा. अदर देन दैट आई वुड से यहाँ पे वो रिपोर्ट्स हैं जो जनरली सब्जेक्टिव टू चेंज नहीं है और एक बड़े विजन के साथ लॉन्च की, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एज आई टोल्ड यू, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. ठीक है जी. सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. फिर आ जाता है आपका लास्ट पार्ट, दैट इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, बिकॉज हियर आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन हियर. अगर हम बात करें रिसेंट ट्रेंड की तो यहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं. पिछले साल यहां सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आई वुड से 1 2 3 कैन बी अरेंज हियर आल्सो.
मिसलेनियस रिपोर्ट्स हर साल आपको टेंटेटिवली 1 से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिकॉज सेंसस, एससीसीसी, पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है हर साल। अगर फेज 1 में नहीं आएगा तो फेज 2 में आएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये इनके फेवरेट टॉपिक्स है नाबार्ड के, जिन पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल आता है, तो इंपॉर्टेंट है। फिर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे में भी यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 क्वेश्चन हियर आल्सो। प्रीवियस ईयर बिकॉज बजट जो था बिल्कुल एग्जाम के पास आया था तो क्वेश्चन ज्यादा थे। इस बार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस थोड़े से कम हो सकते हैं, बिकॉज बजट आपका काफी पहले रिलीज हो चुका है। दैट इज द थिंग हियर, ठीक है। अब इनके थोड़े से क्वेश्चंस को देते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को एग्रीकल्चर क्वेश्चंस बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग, तो जो भी मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर आता है, लाइफ स्टॉक के ऊपर डाटा आ रहा है, उन तरह की रिपोर्ट्स को एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स में कंसीडर किया जाता है। जैसे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस, एग्री सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, देन यू हैव योर मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एनुअल रिपोर्ट हो गई, ठीक है, तो वो आ जाती है पार्ट ऑफ योर एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स। देन इफ आई टॉक अबाउट योर रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यहां पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने निकाली है, नीति आयोग निकाल रहा है, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया। उसके बाद में बात करूं, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट होगी, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट हो गई। तो ये रिपोर्ट्स जो है दे आर पार्ट ऑफ अवर ईएसआई रिपोर्ट्स व्हिच वी जनरली कैटेगराइज। अब यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करना, जो आरबीआई में आप प्राय थर्ड सेक्टर रिपोर्ट्स पढ़ो, जैसे कि फॉर्ब्स हो गया, हुरन हो गया, अभी तक नाबार्ड ने वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना ही वो जनरल अफेयर्स वाले सेक्शन में पूछा है और ना ही वो आपके ईएसआई या एआरडी वाले पार्ट में पूछा है। तो इसका मतलब यहां पे उन रिपोर्ट्स को आप थोड़ा सा लो प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। अगर करना भी है तो आखिरी के 3 महीने पढ़ लेना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। फिर आ जाते हैं जी हमारे मिसलेनियस रिपोर्ट्स। जैसे मैंने बोला सेंसस पे हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो ये पिछले साल का नाबार्ड का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, ठीक है। सेंसस, एससीसीसी दोनों में से एक में से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा नाबार्ड। फिर आ जाता है जी आपका बजट, बिकॉज पिछले साल रिलीज हुआ था तो बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन सी रिपोर्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाता है जी अगला क्वेश्चन कि अब जो ये रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए इनको आपको कवर कैसे करना है। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन आता है टाइमलाइन को लेके। बहुत बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर क्या एक डिफाइंड टाइमलाइन है जो मुझे फॉलो करनी है, क्या है वो डिफाइंड टाइमलाइन। देखिए मैं डिफाइंड टाइमलाइन की बात करूं, बिकॉज वो कंसीडर होगा इन टर्म्स ऑफ योर ईएसआई करंट अफेयर्स वाले पार्ट में। मिसलेनियस रिपोर्ट्स में, बजट सर्वे में और एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स में वो पार्ट कंसीडर होता है, बिकॉज वहां पे आपको लेटेस्ट एडिशन जो भी है वो आपको पढ़ना है। यहां पे मैं बात करूं तो जनरल केस में आई वुड से 5 मंथ वुड बी योर डिजायरेबल टाइमलाइन, वेयर लास्ट 3 मंथ्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इन 3 मंथ्स को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दैट इज समथिंग आई वुड एडवाइस टू यू हियर। अब इन 5 मंथ्स में ना 2 रिपोर्ट्स ऐसी मैं बोलूंगा जिसपे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, वो हो सकता है बियॉन्ड 5 मंथ्स की कैटेगरी में चल जाए। वो कौन सी है? वो आती है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगर वो रिलीज होती है उस साल, जैसे इस साल ये रिलीज हुई है, इट वाज आई थिंक इन द मंथ ऑफ जैन फेब के आसपास से रिलीज हुई है, तो वो आपको यहां पे कवर करने, दैट इज द एक्सेप्शन टू दिस 5 मंथ। अदरवाइज आई वुड से लास्ट 5 मंथ्स की स्कीम जो है वो आपके लिए यहां पे बेनिफिशियल रहेंगी। अब इसके अलावा आता है कि इनको पढ़ना कैसे। मैंने टाइमलाइन बता दिया, अब इनको पढ़ना कैसे है। ठीक है, जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं तो आई वुड से गाइस दिस इज द डायमेंशन वेयर यू शुड फोकस मोर। जैसे कि कोई भी रिपोर्ट रिलीज है तो आपको सबसे पहले इसका रिलीजिंग बॉडी पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट है तो उसके कौन से पैरामीटर्स है, ठीक है जी। उस पैरामीटर्स के बाद अगर उसकी रैंकिंग है तो टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या की फाइंडेंस का मतलब है ग्लोबल लेवल पे कोई बहुत मेजर चेंज है। जैसा कि अगर न्यूज आए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में यूएस इस बार टॉप 10 में आया ही नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री यूएस इज नॉट अमंग टॉप 10। अगर ऐसा कुछ है, ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स नॉट बीइंग मेंशन्ड, जस्ट एग्जांपल के पार्ट में समझा रहा हूं। तो ऐसे डाटा याद रखने। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का क्या रैंक है, क्या पुराना पिछले साल क्या रैंक था, कैसे इंडिया ने डिफरेंट पैरामीटर्स में परफॉर्म किया है, दैट इज यू नीड टू फॉलो हियर। Recommendations again I would say that is not the major question being asked on recommendation, so that is something I could say you can lift or leave for the NABARD examination, ठीक है, लीव कर सकते हैं। चलिए जी, लुक एट द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारी कौन सी रिपोर्ट पे, नेशनल रिपोर्ट पे।
तो ये ग्लोबल वाला पार्ट हट जाएगा। बाकी यहाँ पे टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, क्या पैरामीटर्स है वो बताना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या पैरामीटर है, क्या थीम है। अब पैरामीटर पे सवाल पूछा है कौन सा पिलर्स में से नहीं है। पिलर्स पैरामीटर्स इज वन एंड द सेम थिंग हियर। सेम थिंग यू कैन अप्लाई टू योर एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स आल्सो। ठीक है जी, आई वुड से हियर दे हैव आस्क्ड द रैंक ऑफ इंडिया, सो स्टेट वाइज। अब यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है, यहाँ पे इसको आप स्टेट कर लो कि भाई स्टेट वाइज इंडिया क्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हो रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग क्या है अगर पूछी गई, बताई गई उस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, और स्टेट वाइज कौन टॉप पे कौन बॉटम पे है, दैट यू कैन फॉलो। ठीक है जी, सेम आई वुड से फॉर फाइंडिंग्स हियर दैट यू कैन सी हियर, ये इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग आ गई है। ठीक है, स्पेसिफिक फाइंडिंग। एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स में व्हाट वी ऑब्जर्व प्रीवियस सीरीज गाइस दैट जनरली फेज 2 में रिपोर्ट्स के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। आई थिंक इट वाज वे बैक इन 2021 जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और यूनिसेफ को मिला के रिपोर्ट का क्वेश्चन आया था। उसके बाद हमने बहुत ही कम क्वेश्चंस देखे हैं, बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज प्रीवियस ईयर from agriculture reports also they have started asking the question. So that is something I would say you should be ready this year, because there was a question on NABARD annual report, a paragraph based question was asked, then there was a question on agriculture report, basic animal husbandry statistics at glance, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पे मैं बोलूंगा जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स है वहां पे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द डॉक्यूमेंट कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर जाके घुस जाओ और पढ़ने बैठ जाओ, वहां पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो जो तो इस तरह की रिपोर्ट्स है जैसे कि क्यूसीआई की रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना, नीति आयोग की रिपोर्ट आ रही है, तो यहां पे तो ये पैरामीटर फॉलो करो। उसके अलावा जो बाकी रिपोर्ट्स है हियर आई वुड से जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो विजन क्या है, किसने रिलीज किया है, क्या मेजर चेंजेस लेके आने वाला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बताना चाहिए। आप एग्रीकल्चर की रिपोर्ट पढ़ रहे हो, अगर बात कर रहे हो कि एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हो, तो भाई मीट प्रोडक्शन क्या है हमारा, मिल्क प्रोडक्शन क्या है हमारा, एग प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कितना टारगेट है, कौन टॉप पे है, तो ये पता होना चाहिए। तो दैट इज समथिंग यू वुड आई वुड एडवाइज यू टू वर्क। कमिंग टू बजट गाइस, बजट वगैरह बात करूंगा तो बजट में क्या करना है आपको, बजट में आपको पढ़नी है वो चीजें जो मेजरली या तो अनाउंस की गई है, और यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना, स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा, एनआरएलएम, इनका तो बजटरी एलोकेशन आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत बार इसके बजटरी एलोकेशन पे सवाल आता है। बाकी इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके एग्जाम आपके बजट में सर्वे में कुछ भी बताया गया तो पता होना चाहिए, बिकॉज पिछले साल क्वेश्चन आया था नरेगा के ऊपर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इकोनॉमिक सर्वे में टेबल था, एक छोटा सा टेबल बना हुआ था, चार्ट बना, उस चार्ट में से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। सो दैट इज आई वुड से इनके बारे में, क्योंकि सिलेबस में क्लियर कट डिफाइंड है, तो इनके बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट में काफी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जो मेजर अनाउंसमेंट है, इंडिया का क्या रैंक है, वहां पे ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज हाउ यू कुड अप्रोच दिस रिपोर्ट, बिकॉज हर रिपोर्ट को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट है। जो नॉर्मल रिपोर्ट्स है मंथली लेवल पे आ रही है, वहां पे आपको पैरामीटर्स रैंक ऑफ इंडिया पता होना चाहिए, बट जो एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स है, एक्सेप्ट आई वुड से नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, बिकॉज नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट में नाबार्ड ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए उसके बारे में बताया होगा। नाबार्ड कहां पे एज एन एक्टिंग एजेंसी काम कर रहा है पता होना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए आपको। भाई कुछ फैक्चुअली ओरिएंटेड रिपोर्ट है, सेंसस है, एससीसीसी है, अब उसमें मैं ये नहीं होगा कि उसमें एक ही चीज है, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो। वहां पे ये नहीं कि आप पूरा सेंसस डॉक्यूमेंट पढ़ो, आप पूरा एससीसी का डॉक्यूमेंट पढ़ो, नहीं। सेम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बोलूंगा वहां पे आप क्वेश्चंस को करो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट वुड रियली हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग, कौन सी ऐसे सोर्सेज है जो आप फॉलो कर सकते हैं टू कवर दोज रिपोर्ट्स। नाउ इफ देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लाइक बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स निकल रहा है, हैंडलूम सेंसस निकल रहा है, तो उसके लिए तो भाई आपका प्राइम सोर्स है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज योर प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, नाबार्ड की कोई रिपोर्ट आ रही है, नाबार्ड कोई भी रिपोर्ट रिलीज करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नाबार्ड ने की स्टैटिस्टिक्स ऑफ बैंकिंग की रिपोर्ट रिलीज की थी आरआरबीज के ऊपर, उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक इट वाज इन 2021 एग्जामिनेशन जब उससे सवाल पूछा गया था। ठीक है, इस साल अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे काफी ज्यादा एक्टिव है, तो अगर नाबार्ड कोई ऐसी रिपोर्ट निकालता है कोऑपरेटिव्स के ऊपर, यू शुड बी थॉरो विद दैट। नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, बिकॉज पिछले साल हमने जो ट्रेंड देखा है कि नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट वाज दी आई वुड से मेक और ब्रेक, क्योंकि फेज 1 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, फेज 2 में भी पूछे गए थे, तो नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, नाबार्ड इज द प्राइम थिंग। बाकी अगर जो बाकी रिपोर्ट्स आती हैं आपकी, उसके लिए आई वुड से हिंदू और लाइव मिंट कैन बी द सोर्सेज दैट यू गाइस कैन फॉलो।
बट इफ आई टॉक अबाउट इन अ नटशेल, यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप इन सारे सोर्सेज को खुद फॉलो कर सको, आपके पास टाइम इतना नहीं है। तो आपको करना क्या, आप कंपाइलेशन के साथ जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग आपके लिए डेडिकेटेड कंपाइलेशंस बना रहे हैं इस स्पेसिफिक चीज को लेके। जैसे मैंने बोला, तो आपके पास एक मंथली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम है रिपोर्ट स्टेप। आपके पास डेडिकेटेड एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स के लिए हमने सेक्शन ही बना दिया एग्री रिपोर्ट स्टेप, जहां पे आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स हो गया, हैंडलूम सेंसस हो गया, नाबार्ड एग्रो रिपोर्ट हो गया, कवर्ड हियर। ठीक है, मैंने बोला मिसलेनियस रिपोर्ट है, तो हमने भी आपके लिए स्पेशल मिसलेनियस रिपोर्ट्स का एक सेक्शन बनाया हुआ है, जहां पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वो यहां से कवर होता है। फिर आपका आता है जी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, अगेन अ सेपरेट सेक्शन हैज बीन क्रिएटेड फॉर दैट। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप यहां से इन चीजों को पकड़ सकते हैं, यहां से कवर कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको रिवीजन करना है इन रिपोर्ट्स का, तो यू कैन जॉइन अस ऑन आवर मंथली रिपोर्ट रिवीजन सेशन, जो दिवांशु से कंडक्ट करवा रहे हैं यूट्यूब पे। हमने आरबीआई के लिए सेशंस लिए हैं, अभी हम नाबार्ड के लिए कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, वहां पे आप इस सेशन के साथ इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स गोइंग टू रिवाइज, जहां पे दीक्षा मैम विल बी हेल्पिंग यू हियर, सो वी आर कवरिंग दोस थिंग्स इन आवर यूट्यूब आल्सो। अब वहां से भी जाके इनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि अब अगर कुछ भी नहीं करा तो क्या करें। तो मैं बोलूंगा कम से कम ये 25 रिपोर्ट्स तो बिल्कुल आप करके चले जाइए। 25 प्लस ही है, इफ आई टॉक अबाउट इट इज नॉट 25, इट इज 30 प्लस रिपोर्ट्स। ठीक है जी, तो कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स है विच यू शुड नॉट मिस फॉर द एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कैटेगराइज्ड दोज रिपोर्ट्स व्हिच आर काइंड ऑफ मिसलेनियस और काइंड ऑफ स्टैटिक, जो कि एक बार आई है और लेटेस्ट एडिशन इनका आ चुका है, जैसे कि नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई वुड से बेसिक एनिमल हस्बेंड्री एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नाफिस नेशनल फाइनेंशियल क्रूजिंग सर्वे, स्टेटस ऑफ माइक्रो फाइनेंस, हैंडलूम सेंसस हो गया। ठीक है जी, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। अब यहां पे मैंने लाइफ स्टॉक सेंसस इसलिए ऐड नहीं किया है बिकॉज लाइफ स्टॉक सेंसस नया वाला एक्सपेक्टेड है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो अगर होगा रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में चांस कम है, बट अगर हो गया तो देन आई वुड से इट विल बी द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपकी मिसलेनियस रिपोर्ट्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएलएफएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सेंसस, एससीसीसी एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें 2-3 बार जो है अपडेशंस या 2-3 बार डाटा की डिस्कशंस हुई हैं, तो दैट इज समथिंग आई वुड से इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। फिर आ जाती है दोस्तों वो रिपोर्ट्स जो आपकी रेगुलर लेवल पे रिलीज हो रही है, जैसे कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट अभी रिलीज हुई है, जेंडर स्नैपशॉट, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है, सॉफी होगी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, नेशनल एनुअल रिपोर्ट, नारी रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, यूडीएससी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बिकॉज इफ देयर इज सम रिपोर्ट रिगार्डिंग एजुकेशन, माइंड माय वर्ड्स गाइस, नाबार्ड का बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन है, अगर कोई एजुकेशन रिपोर्ट आती है उस पर नाबार्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एक बहुत क्लियर कट चीज डिफाइंड है सिलेबस में, तो कोई भी एजुकेशन इंक्लाइंड रिपोर्ट आती है इंडिया स्पेसिफिक आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कंटेक्स्ट में मैं बोलता हूं कि इसीलिए एसर और आईशे दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आईशे का मतलब ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन और एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बोलूंगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एसडीजी इंडेक्स आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पे तो भाई हम पहली बार टॉप 100 में आए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है जी, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हो गया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मई में आई है, बट आई हैव टॉक टू दिवांशु सर, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अवर कोर्स तो लाइव प्रैक्टिस सेशंस में भी वो सर आपको यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट और ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट, ये भी मैंने सर से डिस्कस कर लिया है। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कोर्स दीज विल अगेन बीइंग टॉक टू यू ऑन अवर इन अवर लाइव क्लासेस, और मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी हम आपको इसके साथ जो है इन रिपोर्ट्स को हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि लाइव क्लासेस में करवाएंगे, वो लाइव क्लासेस एक्चुअली में है क्या। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, हम अगर आप हमारी वेबसाइट पे आते हैं, एरोटैप की वेबसाइट, ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन द कोर्सेज, ठीक है, गो टू द वेबसाइट ऑफ एरोटैप, aerotap.in, वहां पे आप क्लिक कीजिए कोर्सेज, कोर्सेज पे नाबार्ड ग्रेडेड कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिए। अब अगर मैं इस कोर्सेज की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे हम नाबार्ड के लिए आपको इस बार ऑफर कर रहे हैं फेज 1 प्लस फेज 2 लाइव क्रैश कोर्स, बिकॉज टाइम कम है, फटाफट में स्पीडीनेस में आपको चीजें कवर करनी है, तो दैट वुड बी कवर्ड हियर। और जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड यू हियर इन दिस कोर्स,
और वो आपके साथ लाइव डिस्कस किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि लाइव डिस्कस, लाइव हम आपके साथ पढ़ेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे मैं बात करता हूं, आप यहाँ पे ब्रोशर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं क्लासेस बता रहा था, देखो आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स हैं, ठीक है जी, मिसलेनियस रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में हम पढ़ाएंगे, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे क्लास है आपकी, ठीक है जी। देन आई वुड से आप इन बिटवीन में देख सकते हैं रिपोर्ट्स की क्लासेस है, जो मंथली रिपोर्ट्स आ रही है तो वो कवर्ड है। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो कवर करवाई जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को तो चीजें को प्रैक्टिस करना है, मेरे को तो सिर्फ मैंने पढ़ा हुआ है, आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस द थिंग, यू कैन गो विद द फेज 1 प्लस फेज 2 टेस्ट सीरीज आल्सो, ठीक है। वी विल बी गेटिंग सॉल्व पीवाईक्यूज, यू विल बी गेटिंग चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू हियर। विद रिस्पेक्ट टू द गाइस ऑफर हियर, तो जब भी आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे जो भी रिसेंट ऑफर्स हैं that will be available to you. So when I am making this video, we are offering you flat 72% off on this course of live crash course and flat 76% off on our test series here. Okay? This is the thing here. So this is all about this video on how to approach or how to prepare reports. I hope your doubts are clear now with regards to reports for the NABARD grade examination. So I wish you all the best for the examination, guys. अगर अभी भी मन में कोई डाउट है, we are again there to help you. Just drop me an email that is at hello@edutab.co.in, or you guys can also have a call with us on the number 81462072441. So on that note, guys, I will be leaving you for the day. Wishing you all the best. ठीक है, अगर और कोई वीडियो आप चाहते हो हमसे तो do let me know about that also in the comment section, a video that you want from us. Okay, चलिए, bye bye.